Shall I start? See, almost all the concentration terms I've explained, except few, I suppose. Molality I have explained. Molality. So what is molality and how it is different from molarity? Molarity goes for number of moles present per unit volume of solution, right? Or per liter of solution. Molality is what? Mass of solute dissolved in unit mass of solvent. ये थोड़ा सा अलग है, careful है ना. This is the only concentration terms which is expressed in terms of mass of solvent. तो ये इकलौता ऐसा है जिसमें solvent word use हुआ, not solution. So what is molality? Molality is again a concentration terms usually denoted by small m, as molarity is expressed as capital M, molality is expressed as small m. So molality of a solution is mass of solute dissolved in unit mass of solvent. That is, molality of a solution is mass of solute upon mass of solvent in kg. Sorry, mass of solvent in kg. Let's take some example of this. 2.5 molar solution of sulfuric acid contains 98 gram of sulfuric acid. Find mass of solution. Question goes like this. Yeah. 2.5 molar solution of sulfuric acid. थोड़ा grammatical यहाँ तो कहीं mistake है. Some mass of, questions should start like this. Question. Some mass of 2.5 molar solution of sulfuric acid contains 98 gram of H2SO4. Find mass of solution. Means what? I have given you a sample of H2SO4 solution. This contains H2SO4 plus water. So this contains some H2O4, some water. Strength is expressed in molality. 2.5 molar. 2.5 molar solution is there. And you have to find the mass of the solution if it contains 98 gram of H2SO4. बड़ा आसान है. It's more of maths, less of chemistry. Do it. .5 molar solution means what? 2.5 moles of H2SO4 is present in 1 kg of water. 2.5 molar solution of H2SO4 means 2.5 moles of 298 आएगा. 245 and 1000 तो 98 and 400 498. सॉरी, नहीं आ रहा किसी को? दिमाग लगाओ. When I said 2.5 molar solution, explain the meaning of 2.5 molar. 2.5 molar solution of H2SO4 means what? Moles of solute. 2.5 moles of solute
moles of solute is dissolved in 1 kg of water. This is meaning of 2.5 molar solution. See, वो गलती मैंने यहाँ पे मास लिख दिया था, सॉरी. मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है. मोलारिटी और मोलालिटी में फर्क क्या है? जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलारिटी में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, मोलालिटी में पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बताते हैं. सी, मोल्स कितने हैं सोल्यूट के 1 केजी सॉल्वेंट के पीछे, दैट इज व्हाट वी से इज मोलालिटी. अगर मैं कह रहा हूं 2.5 मोलर सॉल्यूशन है, दैट मींस 2.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 1 केजी ऑफ वाटर. ठीक है, समझा? Yes. ओके, सो 2.5 kg moles मतलब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4? 245. So 245 gram of H2SO4 is present in how much solution? 245 gram of H2SO4 is present in how much solution? 1 kg of water. 1 kg of water. तो सोल्यूशन कितना बनेगा? मेरा इंटरेस्ट सोल्यूशन पता करने में. See, 245 gram H2SO4 is present in 1000 gram of water. तो सोल्यूशन कितना हो गया? 1245 gram. 1245 present in 1245 gram of solution. अभी नहीं समझा? See, H2SO4 है 245 ग्राम, 1 kg वाटर लिया आपने, that is 1000 ग्राम. So 245 plus 1000 is 1245 gram of solution. So 245 gram of H2SO4 is present in 1245 gram of solution. तो आप सोचो 98 gram of water is present in what mass of solution? Therefore, mass of solution that contains कितना 98 gram of H2SO4 is 1245 divided by 245 into 98. 245 ग्राम है, 1245 ग्राम है, तो 1 ग्राम ऑफ H2SO4 1245 on 245, तो 98 के लिए 98 हो गया. तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 है 240, 249 into 2, 498 ग्राम. तो सोल्यूशन कितना लिया हमने? 498 ग्राम. और सोच लो, समझ लो, नहीं आता तो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूं. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं. एक मोलालिटी और मोलारिटी का मिक्स क्वेश्चन लिखना चाहूँ. पॉइंट 5 मोलार मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है. 0.5 मोलार सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर लीटर. फाइंड मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन. मोलारिटी दिया है, मोलालिटी निकालना है. Molarity is given. You have to calculate molality of the solution. थोड़ा सा मैथ्स लगानी होगी, है आसान, कोई दिक्कत नहीं है उसमें.
एकदम शांत दिमाग से सोचो। 0.5 मोलर सोल्यूशन मतलब क्या? 1 लीटर सोल्यूशन का ले लो, कुछ भी ले लो आप क्वांटिटी। कंसिडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, कंसिडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे स्टार्ट कर लो आप, ठीक है। तो 0.5 मोलर है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम है? या छोड़ दो, उसकी जरूरत, हाँ जरूरत तो पड़ेगी इसमें, ऐसे बोल रहा हूँ। तो 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? आज कुछ भी यूनिट्स लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ग्राम्स पर डेसीलीटर, और ये वैल्यू भी थोड़ा ज्यादा ही है, कम कर दूंगा 1 चलो। कंसिडर 1.5 सॉरी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 0.5 मोलर सोल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है? अच्छा, 0.5 मोलर का मतलब क्या होता है? 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब तो बताओ। 0.5 moles of calcium carbonate in 1 लीटर सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो 0.5 moles of calcium carbonate, how many grams of calcium carbonate? 0.5 moles of calcium carbonate, 0.5 moles एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितने ग्राम होगा? 50 ग्राम आएगा। सी 1 मोल CaCO3, ये 40 हो गया, 12 हो गया, कितना 36, सॉरी 48, 12, 60, 60 है ना, 100 है। तो 0.5 इंटू 100, तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना होगा? 1.25 gram per milliliter is density of solution. 1.25 gram per milliliter is density of solution. So 1 लीटर solution का मास कितना होगा? 1250 ग्राम। So 50 gram of calcium carbonate is present in 1250 gram of solution. ठीक है? Therefore, 50 gram of calcium carbonate is present in what mass of solvent? मेरा इंटरेस्ट सॉल्वेंट में, पूरे सॉल्यूशन में नहीं। पहला स्टेप, आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी से आपको किस में जाना है? मोलैलिटी में, ठीक है। ये सब बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ लॉजिक पे, मतलब इट्स जस्ट लॉजिक। केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ है नहीं, बस मोल कन्वर्जन है। तो पहले बताओ मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन? 0.5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये सही है, बट मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है, आपने बोला 0.5 मोल्स पर लीटर, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है हाउ मेनी मोल्स पर केजी, वो भी किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। कोशिश करेंगे पता करने में। तो 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 100 ग्राम। कैसे? कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 48, तो टोटल किया तो कितना हो गया? 100 हो गया। Yes, 1 sir. मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम, तो 0.5 मोल्स मतलब कितना हो गया? 0.5 into 100 is 50. Yes. Okay. So 50 gram of calcium carbonate is present in what mass of solution? आपको सोचना है what mass of solution. तो solution का कितना मास है? 1 लीटर solution का मास कितना होगा? Density is 1.25 gram per milliliter.
तो मास इज व्हाट? मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी कितना? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हो गया 1250। तो 1 लीटर सोल्यूशन अगर आप लाओगे तो उसका मास हो गया 1250 ग्राम। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट? पूरा सोल्यूशन जो है 1250 ग्राम का है, उसमें 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सॉल्वेंट कितना है? So 1.2 kg. 1.2 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझा? तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका 5/12 0.4167 0.42। चलो 17 करना, 0.417। अभी बोलो नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मोलारिटी था वो 0.5 था, बट मोलालिटी निकला कितना? तू किधर से आया? 1.2 किधर से आया? ये देखो 1250 ग्राम। सोल्यूशन का मास कितना है? मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास है 1250 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? सोल्यूट का मास है 50 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 1250 माइनस 50, दैट इज 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। समझा? और मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। तो 1200 ग्राम मतलब 1.2 केजी हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके? क्या भी नहीं समझा? ओके। So this was molality. Now, one of them is mole fraction. दो तीन और बचे, फटाफट बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं। Now, mole fraction. This is a word which you have studied in junior class also. Mole fraction means what? जैसे दो कंपोनेंट है A and B। हमारे 11 12 दोनों में बाइनरी सॉल्यूशन ही रहता है, तो दो ही कंपोनेंट आने वाले हैं। सपोज एक सॉल्यूशन है A और B मिला के, राइट? A stands for solute and B is solvent। ठीक? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द टू, ऐसे लिखते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन नोटेशन कैपिटल एक्स से डिनोट करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बड़ा ऑब्वियस सा लगेगा, हाँ इसमें कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। Mole fraction of B is n of B upon n of A plus n of B। समझा? So mole fraction of A is n of A upon n of A plus n of B। अगर 3 होते थे तो n of C भी आ जाता है। मतलब बेसिकली जिस मोल फ्रैक्शन A का पूछ रहे हो, मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ B। ओके? समझा? तो ये है कहानी आपके मोल फ्रैक्शन की। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूं, बहुत आसान से होता है। अभी फटाफट ना निकालो, ये तो आराम से निकाल सकते हो। 60 ग्राम of glucose is dissolved in 360 ग्राम of water।
कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, बहुत आसान है, तो ओरली देख के कर सकते हो। ग्लूकोज का मोलर मास मालूम है ना कितना होता है? C6H12O6। तो आपको दिया है मैंने 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के 60 ग्राम दे रखे हैं आपको। आपको डिसॉल्व करना है 360 ग्राम ऑफ वाटर में, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शंस बताने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। थ्री बाई 23 इज करेक्ट आंसर। अब हो सकता है ये कितना हो गया, देखो ये इसका कितना हो गया 180 का उसमें 3 मोल्स हो जाएंगे। 3 हो गया, इसका 1/3 मोल हो गया, और इसका कितना मोल्स हो गया 18 20 1/60 है, 15/60। सी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज यार 60 ग्राम ग्लूकोज लिया एंड अपॉन 180, सो 1/3 मोल्स है। एंड वाटर के कितने मोल्स हो गए आपका, वाटर को सॉल्वेंट लेता बी ले लेता, तो बी के कितने मोल्स हो गए 360 डिवाइड बाय 18, तो ये हो गया 20 मोल्स। तो अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 1/61। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस 1/61 कर लो, तो 60/61। ट्राई करो सब लोग, क्यों नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 180 ग्राम मोलर मास, 60 ग्राम लिया आपने, तो 60/180 1/3 मोल्स आपके ए के हो गए। 360 ग्राम वाटर लिया, तो 360/18 20 मोल्स आपके वाटर के हो गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 20 हो गया, तो ये हो गया 61। 1/61 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो दैट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, दैट ऑफ वाटर इज 1 माइनस 1/60, 60/61। ओके, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत आसान होता है, जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा बना। ओके ना, दो और बच गए, एक है नॉर्मेलिटी ना, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, इंस्टेड ऑफ सॉरी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर मतलब स्लाइटली डिफरेंट। ये भी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, बट इसमें मोल्स नहीं काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स काउंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज, टाइट्रेशन में दिस वर्ड इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड देन मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज number of gram equivalents, number of gram equivalents of solute present per liter of solution, present per liter of solution. Normality of solution is number of gram equivalents of solute present per liter of solution. Solution के 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं सोल्यूट के, that is normality। कैपिटल N से डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय कैपिटल N। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट्स डिटेल में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम सॉरी बस इतना बता दूं, जैसे H2SO4 है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए H2SO4, इसका मोलर मास कितना है 98, एंड हाउ मेनी H+ आयंस इट गिव्स, 2 H+ आयंस आते हैं।
राइट। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 49 ग्राम। ऐसे बड़ा डिटेल्ड डेफिनेशन है इसका ग्राम इक्विवेलेंट का, बट अभी वो पढ़ने नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में फर्क क्या है? इक्विवेलेंट वेट ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर से डिवाइड करते हो। एन फैक्टर कैसे देखते हैं उसके लिए पूरी लिस्ट है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। हाँ, तो फिलहाल आपको इतना बता देता हूँ। चल इसको साइड रख देते हैं। उसको इसी कंटिन्यूएशन में एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा, मोल 2। उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रेडॉक्स के नाम से है तुम्हारे बुक में चैप्टर, इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे हम लोग, तभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसको साइड कर देता हूँ। ये पीपीएम, ये एक लास्ट टॉपिक है, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। इसको कैसे रीड करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सोल्यूट। पार्ट्स, जैसे आपका एक सोल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट है, ए है एंड बी है। ए वंस अगेन इज व्हाट? सोल्यूट, एंड बी इज व्हाट? सॉल्वेंट। तो पार्ट पर मिलियन इज पूरे सोल्यूशन में 10⁶ ग्राम में कितने ग्राम ए है? तो मैं बोलूंगा पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए इज व्हाट? mass of A, mass of solution into 10⁶. ppm, parts per million, नाम में ही डेफिनेशन लिखी हुई है। मिलियन मतलब 10⁶, तो 10⁶ ग्राम पूरे सॉल्यूशन में ए के कितने ग्राम है उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए। समझा? ये यूजुअली कहाँ यूज करते हैं? जहां पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे वाटर जो आप पी रहे हो, जो पानी आप घर में पीते हो, वो हार्ड वाटर, मतलब इट्स नॉट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। सम सॉल्ट्स आर ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन इट, राइट। तो वो सॉल्ट्स जो हैं क्वांटिटी इतनी कम है कि उसको हम लोग मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वो सब बात नहीं करेंगे, वो हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। आ रहा है समझ में? पार्ट्स पर मिलियन, ये बेसिकली पूरा मैथ्स है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हमने परसेंट W/W देखा था, ये क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस बार वो 100 ग्राम की जगह मैंने 10⁶ ग्राम कर दिया, दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट W/W भी ऐसे लिखा होता है, वहां मास ऑफ ए अपन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻² लिखा होता है, 100 लिखा था, ये 10⁶ हो गया, दैट्स इट। कि अगर 1 मिलियन ग्राम आप लाओगे सोल्यूशन का, तो उसमें कितने ग्राम्स आपके सोल्यूट के मिलेंगे, दैट इज व्हाट वी से पीपीएम। नाउ स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हो ना। तो कुछ क्वेश्चंस लिखता हैं। जैसे पहला, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। पहले भी मैंने इसको दूसरे फॉर्म में पूछा था आपसे, इस बार आपको मोलारिटी के नाम से पूछना होता है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। अब डेंसिटी वाले कुछ क्वेश्चंस लिख के देखते हैं। अभी जो हमने किया था, कितने
पहला आ गया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। Sir, 55.5 mole per liter. करेक्ट, 55.55 मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। कैसे? पहले वाले का आंसर Density pure water की 1000 होगी. करेक्ट। 1 लीटर वाटर है is 1000 grams of water. So 1000 gram is how many moles? 1000 divided by 18. 18. So 55.55 moles per liter. So we say molarity of pure water is 55.55. आया समझ में सबको? Next one. Density of 3 molar NaCl solution is 1.25 gram per milliliter. Calculate molality percent weight by weight percent weight by volume of solution. Next one. आ रहा है? Density of 3 molar NaCl solution is 1.25. 1 लीटर सोल्यूशन मन में इमेजिन कर लो, देखो क्या आता है। Imagine 1 liter of solution. Sir, molality 2.79. Correct. 2.79 is correct answer. देखो जिसको नहीं आया था देखो, सी 3 molar NaCl solution means what? 3 moles. NaCl is how much? 23 and 35.5. 58.5 into 3 इतने ग्राम 1 लीटर में, मतलब 1250 gram of NaCl in 1250 gram of solution. इसमें कोई शक? 58.5 into 3 grams of NaCl in 1250 gram of solution. इसमें कोई डाउट? So with this we can find 58 3s as 100 and 180 175.5. 5.5 gram of NaCl, 3 gram solution. तो 175.5 ग्राम ऑफ दिस इन सॉल्वेंट कितना है? ये सोल्यूशन का मास हो गया, ये उसके अंदर सोल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना हो गया? माइनस कर दो इससे, 175 हटा दो, तो 1175 1075 1074.5 ये आंसर हो गया। समझा?
अब हमको क्या चाहिए था, मोलालिटी। तो मोलालिटी में क्या होता है, कितने मोल्स, तो 3 मोल थे, कितने केजी, 1.0745 1.0745 ग्राम्स, ठीक है। तो इसको 1.075 भी अगर आप कंसिडर कर लोगे तो 1 प्लस कितना हो गया, 3/400, 1 प्लस 3/40, 3/40 is 43/40 अप्रोक्सीमेटली। सो अप्रोक्सीमेट आंसर इतना हो गया, ये हो गया आपका 120/43, 43 2s 86, 86 34, 340, तो 7 टाइम्स 2.79 के आसपास। सो मोलालिटी इज 2.79। देख लो, जिसको डाउट रह जाए तो पूछो, नहीं तो अगला बताऊं। वापस बताऊं, ओके। ना सेकेंड पार्ट इज परसेंट W/W निकालना। ये तो आसान है। परसेंट W/W क्या होता है, okay, so mass of solute, which is actually 175.5 divided by mass of solution into 100. This is 100 by 8, so 1.75 into 8, 14 point something आएगा। So percent W/W is 14, right? Okay. Then next, percent W/V of solution, ये तो आसान है। Weight of solute present in 100 milliliter of solution. So 175.5 gram present in 1000 milliliter. तो 17.5 हो जाएगा। Percent weight by volume, तो 175.5 डिवाइड बाय ये 1000 मिलीलीटर में था इनटू 100, तो 17.55। परसेंट W/V 17.55, ओके। तो 17.55 percent weight by volume. Next, HCl solution 38% W/W. Calculate molarity and molality if density of solution is 1.19 gram per milliliter. सब परसेंट W/V नहीं समझा। लास्ट वाला, सी परसेंट W/V क्या होता है, weight of solute present in 100 milliliter of solution. Weight of solute present in 100 milliliter of solution. तो इधर पे 175.5 ग्राम कितने में है, 1000 ml में है। यस सर। तो 1 लीटर में, और सोल्यूशन का लेते हैं, सॉल्वेंट है ना सोल्यूशन का। तो 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन था, उसमें 175.5 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है। तो 100 ml में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 ही कर लो सीधा, 17.5। आपको लॉजिक लगाना, फॉर्मूला बाय हार्ट करने के पीछे मत जाना, नहीं तो हर दिन फॉर्मूला भूलेगा। तो 17.55 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। वाई,
175.5 ग्राम पर 1000 मिलीलीटर। हाँ, तो इसके लिए आपको 17.55 ग्राम पर 100 ml लगे। ओके, यस सर। समझा ना? गुड, ये हो गया। ना नेक्स्ट वाला बोलो। Okay, I'll stop